cold wave continues to grip North India as temperature continues to dip. Additionally, amidst the dense fog, the woes of citizens persist as visibility has been impaired in several regions. And as per the Indian Meteorological Department, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, UP and Rajasthan recorded a minimum temperature between 6 to 9 degrees last night. Meanwhile, numerous flight operations experienced delays at the Indira Gandhi International Airport owing to reduced visibility caused by the dense fog, and many Delhi-bound trains are also delayed due to this fog. My colleague Brian is joining us from the capital at this point in time to tell us what's going on. Brian, of course, Delhi is freezing at this point in time, and for the lack of basic amenity like the intense pollution, also visibility in the capital has also been compromised with the added cold. Well, yes, Vineet, there is a gripping amount of cold that is, engulfing the very national capital. It's literally, sending chills and shivers down every Delhiites. If we show you the visuals of the very India Gate also, you can actually see that the foggy-like conditions are not that prevalent, even though it's a gloomy weather now. But you can see that this cold also, you could see that the Republic Day rehearsals are going on full swing. The officials are doing the rehearsals in spite of this. In spite of this cold that is engulfing the very national capital, but still, they have the courage, they have the zeal on, and they are doing the practice. And even this is another very cold day, today also early morning the city woke up to 6 degrees, and even it is still continuing to witness a significant drop. Even now the very temperature in the very national capital is around 7 degrees, and the visibility, if we say the IMD has also said that the visibility is around 500 meters. If you show you the visuals of the India Gate, you see and you understand that even though it's a gloomy weather, it's a cloudy weather, and even the IMD has predicted that there can be light rainfall today. So that is another big question, because right now also it's cold. It's chill cold, and the foggy-like conditions are not prevalent. Today also around 10 to 15 trains were delayed, and there were numerous flight operations that were also delayed in the national capital, especially the Delhi-bound flights. And even if we are in central Delhi, so we are not experiencing the foggy-like situation that much. But when you go to the isolated pockets in Delhi, you actually get to witness the fog, and especially in Ghaziabad, Faridabad, Rajasthan, you see that in those places the fog like giving advisories, especially for senior citizens, for children to especially stay indoors, because this can cause a lot of health problems, be it cough and cold, be it sneezing, or this can cause a lot of problem, because and even the children till class 5, their winter vacations also been increased to 5 days. So yes, these are the advisories that have been given to especially senior citizens and elderly to stay indoors as much as possible, because there's a wind wave also flowing, which is causing a lot of chill to all the Delhiites. That's Vineet. Right. Brian, stay with us. In fact, I'm going to rope in my colleague Pankaj, who's also joining us from Lucknow at this point in time. Pankaj, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या माहौल है सर्दी को लेकर लखनऊ में? जी देखिए, उत्तर भारत सहित उत्तर प्रदेश में भी भयानक ठंडी, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। बर्फ़ की गलन की वजह से ठंडी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज का जो तापमान माइनस में देखा गया तो सबसे कम देखा गया 6, यानी दिन भर का आकलन करें तो 6 से लेकर 16 तक दिन भर का तापमान रहेगा। और अभी तक सूरज नहीं दिखाई दे रही है, पूरा धुंधला। अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से फॉग फैला हुआ है और बिल्कुल धुंध सा नज़र आ रहा है।
उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में ओलावृष्टि के और बारिश के अलर्ट भी जारी किए गए। अगर ओलावृष्टि हुई और बारिश हुई तो ठंडक और भी बढ़ने के आसार हैं। लोग ठंडक से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरे की व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये फॉग की वजह से ट्रेनें लेट हो रही है, फ्लाइटें लेट हो रही है और उसके बाद जो साधन जो NH में और हाईवे पे जो गाड़ियां चलती हैं उनमें भी तमाम विलम्ब हो रहा है और उसके बाद तमाम सारी दुर्घटनाएं हो जा रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंडक बढ़ रही है तो ठंडक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तापमान घटता जा रहा है और उसके बाद आज अभी भी देखें तो, और दूसरी बात कहें आपको महत्वपूर्ण ये है कि इस बढ़ती ठंड में फॉग भी बढ़ता जा रहा है। फॉग की वजह से कहीं ना कहीं IQ लेवल जो एयर कंडीशन लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। 300 के पार हो चुका है IQ लेवल जो एयर कंडीशन लेवल है। तो ये बढ़ते प्रकोप का, ठंड के बढ़ते प्रकोप का ही ये पूरा नज़ारा है कि लगातार कोहरे भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को ठंडक से बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में बैठ के चाय पी रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अनावश्यक लोग घरों से ना निकले क्योंकि ठंडक की वजह से तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, 11 तारीख से बारिश होगी, 11 जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान होगा क्योंकि इस सीज़न में गेहूं का काम किया जाता है, गेहूं बोई जाती है। तो ऐसे में ओलावृष्टि होने पर तमाम दिक्कत का सामना कर, शहरों में तो अलाव की व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई, जो राहगीर लोग जो रास्ते में रहते हैं उनके लिए रैन बसेरे। लेकिन जो गाँव देहात के जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर ठंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। लोग के एहतियात बरतना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में ना निकले। इस समय जो सीजनल बीमारी, जो बढ़ते ठंड में जो सांस की बीमारी या फेफड़े से बीमारी जो जुड़े बीमारी होते हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो हॉस्पिटलों में भी हिदायत दी गई कि इससे जो संबंधित जो भी पेशेंट आए उसको तुरंत एडमिट कराया जाए। हॉस्पिटल में भी जो तीमारदार है उनकी व्यवस्था की गई, रैन बसेरों की व्यवस्था, तमाम सारी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टिंग में भी दिक्कत आ रही है, लोगों को सवारी में भी दिक्कत आ रही है और अनावश्यक लोगों को घरों में रहे और अनावश्यक गाड़ी में सफ़र ना करें क्योंकि NH हाईवे पे जिस तरह से धुंधले की वजह से तमाम सारे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तमाम सारी दुर्घटनाएं हो जा रही, जिसमें तमाम सारे जान माल का भी नुकसान हो रहा है। जी, let me also rope in my colleague Shakti Singh who's joining us from Patna at this point in time. Shakti, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी उदय। सर्दी का प्रकोप नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हर जगह देखने को मिल रहा है। पटना में क्या सूरत हाल है? देखिए विनीत, आपको बताएं कि जो उत्तर भारत के जो अन्य राज्य हैं जहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पटना में पिछले 2 दिनों से जो है धूप निकलने के कारण जो है लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है ठंड से, क्योंकि जो टेम्परेचर है दोपहर में वो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, जिसके कारण जो है लोगों को ठंडी और जो ठिठुरन है उससे राहत महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें सुबह की और शाम की, तो सुबह में कुहासा लगने के कारण जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है और शाम को भी जो है ठंड फॉगी हो जाता है और इसके कारण ठंड भी बढ़ जा रही है। और आपको बताएं कि जो पटना के अलावा जो दूर शहर हैं, सीमांचल के जो एरिया है, नेपाल से के बॉर्डर से सटे जो बिहार के जो जिले हैं वहाँ पे फॉग काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, टेम्परेचर काफी कम है, जिसके कारण लोगों को वहाँ जो है ठंड ज्यादा महसूस होती है। लेकिन अगर हम बात करें साउथ बिहार की, तो साउथ बिहार में ठंड के जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर है क्योंकि धूप निकल रही है। लेकिन अगर ट्रेनों की बात करें हम, तो विजिबिलिटी कम होने के कारण कई लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं जो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से पटना आती है, बिहार के अन्य जिलों में जाती है, वो काफी डिले है। 6 से 8 से 10 घंटे भी कई ट्रेनें जो है वो लेट चल रही है वहां से की वजह से। और फ्लाइट की अगर हम बात करें तो कई फ्लाइट ऐसे हैं जो पटना में सुबह फॉग के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण रनवे पर लैंड नहीं कर पा रही, जिसको कि कहीं कोलकाता डाइवर्ट करना पड़ जा रहा है और वापस फिर पटना जब विजिबिलिटी सही दोपहर के समय जब हो जा रही है तो फिर वापस पटना लाया जा रहा है। तो यात्रियों को परेशानियां भी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि जो प्रशासन ने जो है स्कूल को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, इसमें कहा गया कि स्कूल जो है सुबह 9 बजे के बाद खुले और उसके बाद 3 बजे तक जो है स्कूल खुले रहे, चाहे किसी भी क्लास के बच्चों को जो है, इससे प्राइवेट हो या सरकारी सभी को हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है कि सुबह में 9 बजे से पहले स्कूल न चलाएं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो IMD ने भी जो अलर्ट जारी किया है कि ठंड के कारण जो है खास करके जो सीनियर सिटीजन है और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, उनको सुबह और शाम को जो घर से अगर जरूरत ना हो तो ना निकले। और लेकिन आप बात करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले जो है
बिहार में जो है थोड़ी सी दो दिनों से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। जी Vijay, my colleague, is also joining us from Himachal Pradesh at this point in time. Vijay, हिमाचल में क्या सूरत हाल है, विस्तार से बताइए। उत्तर भारत में जिस तरीके का प्रकोप है सर्दी का, हिमाचल में और भी ज़्यादा होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यदि हिमाचल की बात की जाए तो इस समय जो तापमान है वो माइनस की ओर बढ़ रहा है। दिन में धूप जो है 11 और 12 बजे के बीच में निकल रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय धुंध का ये आलम है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है और कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे भी यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी तक कोई चीज नजर नहीं आ रही। इसकी वजह से यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ज्यादा फर्क जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको और यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों को इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं या महिलाएं या और अन्य कर्मचारी, उन्हें यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी हाल ही में कल यहाँ हिमाचल में कुफरी में हल्का स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से तापमान और ज्यादा लुढ़का है। और हालांकि जो वहाँ के जो बागवान हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे हिमाचल में एक शीतलहर की चपेट है और पूरा हिमाचल जो है इस समय धुंध और उस शीतलहर की चपेट में है। जी Ashik Mir, my colleague, is also joining us from Srinagar to give us an update on how the weather is behaving in that part of the country. Ashik, श्रीनगर में क्या माहौल है इस वक्त, और जिस तरीके से उत्तर भारत की अभी दशा बताई जा रही है, श्रीनगर में जाहिर सी बात है कि उससे दुगनी ही होगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते एक महीने से लगातार जो है कश्मीर घाटी ठंड की चपेट में है और इस ठंड की चपेट से कहीं ना कहीं आम जिंदगी जो है मुतासिर हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जहां दिसंबर जनवरी का महीना खुश्क रहा और इस महीने की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में सफेद चादर बिछ गई होती थी, लेकिन आज जो है खुश्क मौसम है और पहाड़ों पर भी बर्फबारी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले कुछ दिनों के बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिसका सीधे तौर पर असर जो है मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा, पर्यटक जितने भी स्थल है वहां पर पर्यटकों का काफी ज्यादा रश बढ़ चुका है। पर्यटक इसी इंतजार में है कि कब कश्मीर के मौसम में बदलाव आ जाए, ताकि इस मौसम के साथ साथ वो बर्फबारी से भी वो एंजॉय कर सके। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले जितने भी किसान हैं, वो भी उनके अंदर भी तशवीश की लहर पड़ गई है, क्योंकि बीते एक महीने से ज्यादा अरसे से जो है खुश्क साली पड़ी है, कहीं पर बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी का कहीं पर नामो निशान नहीं है। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये खदशा सता रहा है, ये डर सता रहा है कि अगर इसी तरह का मौसम जो है बदस्तूर रहा तो उनको भी नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। कश्मीर की वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर डल झील से लेकर दरियाओं की अगर बात करें तो दरिया जो है उनकी पानी की सतह जो है काफी कम हो चुकी है। पानी की किल्लत जगह जगह पर हो रही है। अब जो है श्रीनगर समेत कई एक जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पानी के हवाले से, क्योंकि लोगों के घरों तक जो है पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। नल जमे रहते हैं। सुबह सुबह की अगर हम बात करें, सुबह 10 बजे के बाद ही यहाँ पर लोग घरों से बाहर आते हैं, 10 बजे के बाद ही यहाँ पर दुकानें खुलती है। तो ये हाल है कश्मीर में। अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो कई एक टूरिस्ट ने जो अपना टूर प्लान कैंसिल करके रखा है, क्योंकि उनका शेड्यूल जो है अब फरवरी में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी के लिए ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं जिसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल बर्फ का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.